हाय एंड वेलकम टू एचएस कम्युनिटी। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो आ गई हूँ लेके आपके रिव्यूज। जी हाँ, आपके रिव्यूज स्पेशल हैं, इसीलिए स्पेशल बात करना बनता है। तो शुरू करते हैं अनुपमा धारावाहिक पे आपके जो रिव्यूज हैं उनके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं एबिगल के वीडियो से। नमस्ते अंजू मैम और मेरी सब दोस्त को नमस्ते। आप सब कैसे हो? और सबको धन्यवाद मेरा वीडियोस पसंद करने के लिए और मुझे encouragement देने के लिए। मैं हिंदी सीखने की कोशिश कर रही हूँ। आज का एपिसोड अच्छा था, नॉर्मल था. So the episode started with Anupama entering Kinjal's house, and she looks around. It looks empty and lonely, and she feels lonely. And then she also remembers all her moments with the Shahs, and then she also remembers all the hatred that comes from Aradhya, that she's a curse, and she's always coming in between her and Shruti, and all those hatred. And then Anupama after that feels sad, but then she thinks about her competition, that she's in danger zone, she has to come out of it. And she remembers Bapuji telling her she has to come out of her danger zone and go to the next level. Yeah, then Anupama thinks that she has to now focus on her competition. Yes, Anupama, focus on your competition now. It's because that's important for you and for your dreams and for the restaurant. So just focus on yourself now. And then when she feels good, she will the text will come from Shruti. Yeah, Shruti will text her is because, excuse me, Anuj would be looking at the photograph he took at the Ram celebration, and he will be thinking now that Anupama will be alone now and she's lonely. So no one is with her. At least I have Ardhi and Shruti, but she's all alone. Now you're thinking, Anuj, she's all alone. What about 5 years back? Actually, Anuj still does not realize how badly he hurt Anupama. His words hurt her badly when she was questioned, and Anupama could not take it because it came from Anuj after all. And then he constantly keeps saying that she doesn't love him, she doesn't want him in life. How can she go back to you, Anuj? Look at your mess that you have created. You have a daughter who hates Anupama. Shruti is constantly being insecure. In a year, you got engaged and you have a woman in your life. Anupama is alone, or you did not realize that 5 years ago? Yeah, so then Shruti, looks at Anuj, and she, she's again, she's getting jealous. So she'll then purposely, she'll send message to Anupama to prepare, some food for the puja. And Anupama will send, yes. Anupama is now understanding that Shruti is doing this on purpose. While she's preparing, Dimpy comes back with the Pari, and then Anupama asks how did it go at the airport, was everybody crying, and then all that talk about the airport. And then Kinjal asks Anupama what you're preparing. She says, oh, I'm preparing this for Shruti's, they're having a puja. And then Kinjal will get upset and say, why are you preparing? This is not the deal for the wedding catering. So I think at sometimes Shruti is trying to, get at you, she will tell Anupama, because she wants to show you that Anuj is hers. And then Anupama will say, yeah, of course Anuj is hers. What's wrong in that? And then she'll say, but you never know, if they'll get married or not. And then Anupama will look at Kinjal and she'll say, yeah, I mean, anything can happen, right? Yeah, then
Anuj is like standing next to Shruti and he's looking at the arrangements for the puja, and he remembers the moment he and Anupama were launching their new hotel, and they had the puja on that day, so he was remembering that day. And then Shruti like comes and says, "Is everything okay?" And he's like, "Yeah." His thoughts are all on Anupama. And then when these people at the puja say that, "Come on, as husband and wife, you all need to sit together," and they come and they sit there. And Aradhya suddenly says that she has to go to school. She has a project to submit, so she's going to school. And then she trips on the couch, so it's a sign that something bad is going to happen. So yeah, by the way, in America they don't wear uniforms. Because most of the children go to public schools and they wear civil dress. However, if they are studying in a super rich private school, then some schools have uniforms, but even private schools have civil dress. Because my daughter studies in a private school here in Canada, and she does not have a uniform. Yeah, so when Aradhya goes out, also she trips on the stairways and she says, "Oh, what's happening?" So it's a sign that something bad is going to happen. And then there, Anupama is sitting and, thinking about all the moments of humiliation from Toshu, One Raj, and then she even remembers the good blessings from Babuji and Ba and everybody. And the competition starts, and they say today it's a do or die situation, and you will be given 15 minutes. And then when she, I think again the grumpy judge, what do you call them in Hindi? Kadhus. Yeah, the Kadhus judge is again picking on Anupama purposely, going on telling her you'll be eliminated, you have to go out of this, and purposely he'll call her name, Anupama Joshi, are you ready up for the challenge? Yeah. So then when Anupama looks at the ingredients, she's all worried because she cannot recognize those ingredients, and she's a bit tense. She's thinking of leaving. But then again, she remembers, yeah, Anuj is sitting at the puja. And Shruti is praying that Anupama leave him out of his life and go. It's not Anupama who has to leave. You have to leave, Shruti. Anupama is not doing anything in your marriage. Anuj is the one who still wants Anupama back. Why don't you get straight, Shruti? How much ever you pray, it's not going to happen. Anuj just cannot become yours. Yeah. And then Anuj is thinking something else. Anuj is praying for Anupama that she's in danger zone. She has to come out of the danger zone so she can, win the competition. It is her dream. Yeah, Anupama is like ready to almost leave is when suddenly she hears a voice, "Stop," and that is Anuj. Anuj at the puja says stop. Oh wow, now telepathy is also great, huh? uh, it's so advanced that he can scream from his house, and Anupama can hear him from the competition. Very good. And then she looks, Deepu is there, and Deepu's mom, Babuji, Bar, all encouraging her and telling her that she can do it, and she will start preparing. I think she prepares a pizza, Indian with Indian bread. Yeah. Then Anupama is like, she's done with her dish, but then it goes to the puja back, and Shruti asks Anuj what happened. Is he thinking something? And he will just like refuse and say, and then it goes to the pre-cap. Yeah, so all of I think in the comments we were all discussing that Shruti is going to get shot, and I'm very sad to hear this, that now Ardhya is like angry with Anupama and says, "I'll kill you if something happens to Shruti." How dare she? This is beyond understanding. Makers, why are you portraying a 13-year-old being so evil and devious? She's telling her mother she will kill her if anything happens to Shruti. And Anuj is again hugging her. So what? All these moments of Anupama and Anuj dreaming, coming together. What was the, use of bringing them back after 5 years? They have separated. Why did they have to confront each other after 5 years and then, rekindle their feelings and their heart when they have to get separated again?
Where is the story? I think they are lost in the narrative. Anyway, that is all for today. Yeah, Anju ma'am, thank you for, starting this new idea of just the HS community and, sharing your reviews along with us, our reviews. And it is encouraging for us and, helps us to, work harder towards giving our reviews. Thank you, Anju ma'am. Thank you, everybody. Love you all. Good night. थैंक यू सो मच अभी। और आप बहुत अच्छी हिंदी बोलना शुरू कर चुकी हैं, और सबसे बढ़िया ये लगा कि आपने जो खड़ूस शब्द को यूज किया है, कीत को खड़ूस जज कहा, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, और मैं भी आप लोगों के साथ अब जुड़ी हुई हूँ, एचएस कम्युनिटी के साथ जुड़ी हुई हूँ, तो मजेदार सफर रहेगा आपका और हमारा। बाकी आपके रिव्यू में बहुत बढ़िया बढ़िया बातें हैं, तो ऐसे ही आप अपने रिव्यू को भेजते रहिए। थैंक यू सो मच अभी। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, 2 दिन से मैं अपना ऑडियो नहीं सेंड कर पाई, थोड़ा बिजी शेड्यूल था मेरा, और माइंडली भी थोड़ा सा फोकस नहीं हो रहा था अनुपमा के लिए, थोड़ा बिजी होने की वजह से, तो इसलिए मैं नहीं कर पाई अपना ऑडियो। तो मैं भी मिस किया खुद को। कल के पब्लिक वाइज शो में जो एचएस कम्युनिटी का जो था, उसके में सच में मैंने अपने आप को मिस किया। फर्स्ट डे था, फर्स्ट वीडियो था, तो मैं भी होनी चाहिए थी, बट नो आइडिया भी नहीं था, थोड़ा बिजी, सच में बिजी थी मैं तो। और दूसरी बात है कि कल मुझे रेखा सक्सेना जी का, बाकी सबके बहुत अच्छे आइडिया थे, बहुत सबके पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छे थे, बिल्कुल सही थे, हर किसी का एक अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छे तरह से रखा, सभी ने रखा। पर कल रेखा जी का पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लगा। वो हम लोग भी वही बोलते थे, हमने भी वही कहा था जब ये 5 साल पहले जो बात हुई थी तभी कहा था, और अब जब मान का रिन्यू की बात करते तब भी हमने कहा था कि ये कैसे मिलेंगे, क्योंकि आध्या की नफरत, आध्या जब तक नफरत करती तब तक ही नहीं मिल सकते, क्योंकि दोनों ही तो आध्या के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं। शादी हो इसलिए रही ना कि आध्या के लिए। तो यहाँ मुझे वही लगता है कि जब तक आध्या के मन की नफरत नहीं जाएगी। और दूसरी वजह आपने बहुत सही कही रेखा जी की, अनुज भी खुद जिम्मेदार है इस सब के लिए, ये दूरी के लिए, ये जो दोनों के बीच में जो दूरी है ये उसके लिए, क्योंकि 5 साल पहले अगर वो सब बातें वो अनुज को अनुपमा को वो जो तो उसको जो बोलना था, दर्द देना या ना, वो उसका इतना है ना सब, उसको गलत कहना, और जो जिल्लत वाली बातें जो कर दी थी उसने, उसका दिल तोड़ने वाली बातें, तो वो वाकई में बिल्कुल एक हम लोग उस समय यही, हमारा भी वही था, हम लोग भी वही कहते थे कि ये कैसे बोल गया, अनुज से एक्सेप्ट नहीं किया था। और उससे भी बोला कि उसके बाद में जब 5 साल का अगर अलग होते हैं, डिवोर्स होता है, तो ये कैसे। और अनुज को अपना, आज भी अनुज को वो सब बातें याद नहीं आती, तो हम लोग यही चाहते हैं कि ये भी दिखाना चाहिए कि उसको ये भी, अगर उसको लगता है अनुपमा गलत है तो वो खुद भी गलत है, तो ये भी उसको आना चाहिए कि कुछ गलत, मेरी गलती मेरी भी है, मैंने ये 2 हिस्सों में उसको बांटने वाला काम मुझसे भी हुआ है, मैंने ये सब, मेरी भी गलती है। उसे बस इतना कहा कि मैंने जल्दबाजी कर दी, शादी करके जल्दबाजी कर दी, इसका मतलब ये नहीं होता। फिर तुम जब अनुपमा को अपनी लाइफ में चाहते थे तब भी नहीं चाहते थे कि अनुपमा जाए, तो तुमने कोई एफर्ट्स नहीं दिखाए। आज भी ये शादी कर रहा है तो कोई इसकी तरफ से एफर्ट्स नहीं है। तो यहाँ मुझे वही शिकायत अनुज से। पर अब क्या दिखाना चाहते हैं राजन शाही। पर आज का शो जितना भी देखा, आज के शो में अनुपमा ने एक फिर ठान लिया कि मुझे अपने सपने पे फोकस करना है, मुझे अभी कुछ खोने के लिए मेरे पास रहा नहीं, सब खो दिया मैंने, पर अब कुछ भी खोने के लिए नहीं है, उस पर करना। पर अनुपमा जब भी कोई दृढ़ संकल्प करती है ना, उसके पीछे 4 मुसीबतें और आ जाती है। पहले आ गया मैसेज आ गया कि प्रसाद बनाना है, जो कि अनुज ने मना कर दिया। अभी अनुज को जब पता चलता है कि उसे मैसेज किया, तो उसने वहाँ पर उसको स्टॉप कहना चाहिए, यानी रोकना चाहिए ना उसको मनमानी करने से। यहाँ पे जब आध्या नहीं जा रही है, उसका भी रिएक्शन हम देखते हैं। आध्या नहीं जाती है कि वो अनुपमा उनके किसी फंक्शन में आए और उसने कहा कि इनकी मौजूदगी, इनका जहाँ ये होती है तो गलत होता ही है, तो वो क्यों बार बार अनुपमा का इंसल्ट करवा रहा है। तो यहाँ अनुज ने श्रुति को रोकना चाहिए, पर यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। अब कहानी को ऐसे दिखाना ठीक है, पर यहाँ ये बोलते होना चाहिए तो नहीं होता है ना, तो ये तकलीफ देना ही है ना। फिर दूसरी तरफ आध्या भी फिर मैंने हर हमेशा, अभी देखो कुछ भी हो रहा है तो अनुपमा की वजह से हो रहा है, तो ये सब बातें होती है ना। तो अभी ठीक है, पूजा की तैयारी, अनुज को सब बातें आती है, पूजा देख के उसको पहली पूजा अनुपमा के साथ, वो ऑफिस वाली जो दोनों पार्टनरशिप में वो पूजा करते हैं किसी लैंड पे, तो वहाँ पे वो भी एक दिखाते हैं, वो उससे याद आता है।
श्रुति के साथ है, पर श्रुति के साथ ना होकर अनुज के अनुपमा के लिए सोच रहा है, या श्रुति प्रार्थना कर रही है कि अनुपमा उनकी लाइफ से, अनुज के दिल से, दिमाग से निकल जाए, चली जाए, दूर चली जाए, और यह अनुज अनुपमा को ही सोच रहा है। अजीब सा लगता है कि दुआ में से किसी एक की पूरी होगी, अनुज की ही पूरी होगी, क्योंकि वो शुभ अनुज अनुपमा के लिए सोच रहा है कि उसका कंपटीशन है और वो कंपटीशन जीत जाए और उस डेंजर जोन से बाहर निकल जाए, आज अगले राउंड में चले जाए, वही प्रार्थना कर रहा है। और यहाँ अनुपमा कंपटीशन में आज किंजल ने फिर से एक मन में बात डाल दी कि शादी नहीं होने वाली। उसने कहा कि जानबूझ के कर रही श्रुति ये सब, आप उसे प्रसाद बनाने के लिए और आपको तंग करने के लिए, आपको जताने के लिए, जलाने के लिए, जो भी उसका कहना है। पर उसे आज उसके मुँह से भी निकल गया कि शादी नहीं होगी। अनुपमा कंपटीशन हॉल में पहुंच गई है, घबरा रही है। उसे जो मिला है बनाने के लिए वो अनजान सब्जियां, उसे समझ में नहीं आ रहा, घबरा गई, जाना चाहती है। शेफ ने उसे डांटा, फिर से सबने कहा कि नहीं आप कोशिश कर सकते, करो। उसको भी सब याद आ रही, बात में याद आ रही, मोटिवेशन सॉन्ग बज रहा है, सब हो रहा है। अनुज भी परेशान है अनुपमा के लिए। इधर अनुपमा ने फिर हार मान ली और फिर वहाँ से निकलना चाहती है, तो अनुज का रुक जाओ, और अनुपमा का वो सुन लेना और वहाँ रुक जाना। बड़ा अच्छा लगा वो सीन कि दिल से दिल तक का रिश्ता है, पर अलग कैसे हुए। फिर सवाल आता है कि इतना अच्छा दिल से कनेक्शन है, तो उस समय दिल को क्यों नहीं एक दूसरे के दिल को समझा भाई। वो अलग होना, गुस्सा ना हर पति पत्नी के बीच में है, उसे गुस्से में गई, अलग रही, फिर तलाक। तो यहाँ पे डिवोर्स का कहाँ से आ गया? आज भी क्वेश्चन मार्क है डिवोर्स के सामने कि इतना गहरा रिश्ता है ये, एक दूसरे दिल से अलग नहीं हुए तो कागज के टुकड़े पे कैसे सही कर दी? क्या वजह होगी? हाँ, अनुपमा ने पहल की। अनुपमा ने बताया कि मैंने ही ये रिश्ता ख़त्म करना चाहा, तो अनुज ने क्यों ख़त्म कर दिया? नहीं करता ना, तुमको दूर जाना, जाओ, मेरी शक्ल नहीं देखना, मत देखो, पर मैं सही करूँगा नहीं, बस ख़त्म बात। वहाँ ये हो सकता होना चाहिए था, पर क्यों? तो यहाँ पे यही समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरी बात है कि आज वो कंपटीशन अनुपमा ने फिर उसको, अनुज ने तो उससे फिर हिम्मत दिखाई, हर एक सब्जी को खा के देखा, तभी पता चलता है कि कैसे, किसका क्या फ्लेवर है, किसका क्या, के कौन सी सब्जी पकाना है, कौन सी क्या करना है, तभी तो पता चलेगा। बहुत अच्छे से स्मार्टली अनुपमा ने हिम्मत दिखाई और बनाया, डिश बन गई उसकी, कम समय में बन गई। उस जो दूसरी पार्टिसिपेंट थी उसके से पहले बन गई। और अब घबरा रही अनुपमा की, टेस्ट तो है, टेस्ट शायद अच्छा रहेगा दोनों का, पर यहाँ टाइम लिमिट देखी जाएगी, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अनुपमा ने पहले बना लिया था। तो यहाँ मुझे ऐसा था कि टाइम लिमिट मैटर करेगा। और दूसरी बात है कि अभी जो रिकेप में दिखा रहे हैं, तो श्रुति का मैंने श्रुति का वो गोली लगना मैंने पहले इतना देखा जो रिकेप में, फिर अभी मैंने देखा कि वो वीडियो भी दिखाया कि कोई 2 टेररिस्ट होते हैं, वो दोनों परी और इसको आद्या को वो बंदूक उसके सामने डाल के, तो वो दोनों ये लोग भीड़ में बाहर, पेरेंट्स वाले भीड़ में, श्रुति और अनुपमा बाहर घबरा रही, तो जैसे गेट खुलता है, अनुपमा नहीं, अनुपमा शायद दौड़ के जाती है, इसलिए गोली चलती है, ऐसा लगता है मुझे। वो वजह हो सकती है कि अनुपमा ने शायद देख के घबरा गई और वो दौड़ के भागी, तो इसलिए श्रुति भी भागती है तो श्रुति को गोली लगी। ये वजह मुझे पहले लगा ऐसा कि क्यों श्रुति अनुपमा पे इल्ज़ाम लग रहा है, तो वो अनुपमा शायद गेट खोलती है, इसलिए वो गोली चल जाती है, ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है। पर अनुपमा बचाना ही चाहती थी, तो एक्सीडेंट ही है, पर ठीक है, वो इसलिए श्रुति को गोली लगी, इसलिए वो अपने आप को जो जिम्मेदार समझ रही। पर एक फिर यहाँ पे वो जब सामने आएगा, अब इतने सारे लोग हैं तो बोलेंगे ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ लोग भी बोलेंगे, तो यहाँ पे ही सामने आएगा। अभी अनुपमा ने अपने आप पे ले लेती है, अनुपमा हमेशा की तरह की मेरी वजह से। तो यहाँ मुझे ये सब चीज़ में पॉजिटिव लग रहा है कि शादी को रुकने का कोई रीज़न नहीं था। आद्या के मन में नफरत वैसी थी और शादी किसी भी कीमत पे रुक नहीं सकती थी, क्योंकि अनुज रोकना आद्या के लिए कर रहा था और श्रुति चाह नहीं रही थी गिव अप करना। तो यहाँ पे वही होगा कि मान को कैसे पास में लाएंगे, आद्या के मन की नफरत। तो यहाँ श्रुति को अभी डेंजर में दिखा रहे हैं, क्रिटिकल दिखा रहे हैं, पर अनुपमा जो कहती ना मकसद कि मेरा बेटी की खुशी लौटाना, उनको उसकी श्रुति लौटाना मेरा मकसद है, तो यहाँ वो प्रार्थना करेगी, केयर करेगी उसकी। तो यहाँ पे वो श्रुति शायद बचाएगी, तो फिर इसकी केयर कौन करेगा, देखभाल कौन करेगा? तो अनुपमा अनुज के घर जा सकती है, वो बोलेगी कि मुझे रहने दो, मैं तुम्हारी श्रुति को तुमसे नहीं छीन रही हूँ और मैं
श्रुति की ऐसे ठीक कर सकती है कोई कहे, क्योंकि दोनों इंजेक्शन से, दवाई से, सब चीज़ से डरते हैं ना। तो यहाँ वो होगा कि अनुपमा श्रुति की केयर करते हुए दिखेगी, उसे ठीक करने की कोशिश। फिर यहाँ शायद माँ बेटी का मिलन देके श्रुति खुद गिव अप करेगी, ऐसा मुझे लगता है। और ये हो सकता है ना, पॉजिटिव ही लग रहा है कि माँ बेटी का मिलन दिखाएंगे, पहले नफरत और बढ़ेगी, चिल्लम चिल्ली होगी। कंपटीशन में बहुत प्रॉब्लम, मुझे कंपटीशन का आपका वीडियो सुना अंजू जी मैंने, पर वो तो एक अलग लगता है। उसे अभी छोटी के लिए बोला है, तो वहाँ पे उसकी मुसीबत तो बढ़ेगी, बेचारी को चैन तो मिलेगा नहीं, मुसीबत बढ़ेगी। तो यहाँ ये हो सकता है कि कंपटीशन में फिर वही उसको धक्के दे दे के जैसे हमेशा की तरह उसके साथ जो हो रहा है वो यानी हर राउंड को ऐसे ही पार करेगी। लास्ट में फिर माँ बेटी का मिलन होगा, अनुज हेल्प करते हुए दिखेगा, क्योंकि अनुज अनुपमा का पास आना भी तो ज़रूरी है। तो यहाँ अनुज हेल्प करेगा कि तुम इतना सब संभाल रही हो तो मुझे तुम्हारे इसमें मदद करने दो, मैं आता हूँ, वहाँ आऊँगा, तुम्हें हौसला बढ़ाऊँगा। ये सब हो सकता है कि एक दोस्त की तरह या फिर एक इंसान की तरह तुम्हें जो करना है करो, जो फैसला, ये ऐसा एक लगता है मुझे कि मान मिलाने की तैयारी है, ऐसा मुझे लग रहा है। पर देखते हैं मेकर क्या चाहते हैं ये। पर मुझे पॉजिटिव लगा, हम कंपटीशन नहीं छोड़ेगी अनुपमा और ऐसा कुछ नहीं करेगी, क्योंकि स्पाइस एंड चटनी की जिम्मेदारी भी वो तो उसका घर है। पहचान है, अनुपमा अभी बदली है ना, तो वो माँ तो बनेगी, पर ये वो चुनौती भी पार करेगी, ऐसा मुझे लगता है। पर देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच वर्षा, हमने भी आपको बहुत मिस किया। एचएस कम्युनिटी की बात और वर्षा उसमें ना हो तो क्या ही मजा आएगा। आज मजा आया, आप भी इसमें शामिल हुई और आपने बहुत बढ़िया रिव्यू दिया, जैसे आप पहले भी देती आई हैं। सही कहा, आपकी बहुत सारी बातें सही हैं। तो ऐसे ही मजेदार से रिव्यूज के साथ अपना सफर हम जारी रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्कार अंजू मैडम, मैं बलदेव जलंधरी। सबसे पहले तो मैं आपसे और सभी बाकी मेरी बहनों से माफ़ी मांगता हूं कि मैं बड़ी देर से ऑडियो मैसेज अपना नहीं भेज पाया, कुछ मसरूफियत की वजह से। तो आज भेज रहा हूं। तो एक वीडियो आपका मैंने देखा, बहुत बढ़िया मुझे लगा। बिल्कुल आपकी बात सही है कि ये शाज़ गए नहीं हैं, आए हैं अनुपमा की ज़िंदगी में। अनुपमा 5 साल तक शाज़ से दूर थी, तो यहाँ पे आके फिर से टकराए और फिर वही रिश्ते जो है वापस से हरे हो गए। अब ये बनराज वगैरह गए हैं, जाहिर सी बात है बनराज वहाँ पे जाके इंडिया में जाके डिम्पी की शादी तो नहीं करेगा, तो फिर ये सारी चीज़ें होंगी और अनुपमा की इन्वॉल्वमेंट होगी। अब गए थे तो साथ में वो तोशु को भी ले जाते, निकम्मे को साथ, मगर नहीं, यहाँ पे भी तो कोई अनुपमा को तंग करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए, यहाँ पे कोई पंगा खड़ा करने के लिए। तो तोशु और किंजल को खैर यहीं पे छोड़ गए, ताजो परी भी साथ में, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें इन्वॉल्वमेंट रही। तो सुपरस्टार जो शेफ का कंपटीशन है, मुकाबला है, हमको पता है कि अनुपमा में वो दम है, वो टैलेंट है, वो जीत सकती है। और यहाँ पे एक जज कीथ जो है, मुझे मैडम समझ में नहीं आता कि उसकी अनुपमा से क्या खुन्नस है, क्या प्रॉब्लम है। ऐसे लगता है कि जैसे सारी भारतीय नारियों से ही उसको प्रॉब्लम हो, कि इंडियन है इसके लिए प्रॉब्लम है, या फिर एक फीमेल है, फीमेल तो बाकी भी हैं। तो इंडियन फीमेल ने, मुझे लगता है उसका बेचारे का कुछ ना कुछ ऐसा कभी ऐसा हुआ होगा, दिल विल ना तोड़ दिया हो या उसकी बेइज्जती ना कर दी हो। तो अनुपमा के पीछे शुरू से हम देख रहे हैं कि वो हाथ धो के पीछे पड़ा है। देखता भी कैसे खुन्नस से है कि ये ना जीत जाए। ये मुझे कहानी समझ में नहीं आती। चलो खैर, वो कहते हैं ना कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो उसके खुन्नस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अनुपमा ये एंड तक तो पहुंचेगी सुपरस्टार शेफ के एंड में जाके कहीं वो फिर से वही कुर्बानी ना कर दे। उसको ये शो जीतना चाहिए। तो अब जो गोली वाला मामला हमको दिखा रहे हैं कि श्रुति के गोली लग गई है। अब भैया श्रुति अगर
माया जैसा अंत हो गया तो अलग बात है, वो ट्रैक बाइंड अप कर दिया तो ठीक है। अगर अब श्रुति बच जाती है तो जैसा कि मैंने कमेंट भी किया था कि फिर अनुज और ज़्यादा इस रिश्ते में उलझ के रह जाएगा, क्योंकि पहले तो ये जो वापस रिश्ते में उलझा तो क्योंकि उसके माँ बाप की डेथ हो गई थी, उसके लिए वो सिंपैथी जो है आ गई है। अनुज ने कह दिया कि मैं पूरा साथ दूंगा। वो आध्या तो उसका तो जो है एक सूत्रीय कार्यक्रम ही यही है कि अनुपमा से खुन्नस के लिए वो अपने पॉप को कहीं पे भी धकेलेगी। तो खैर अगर वो बच जाती है तो फिर अनुज इस गोली के बाद भी उसकी सेवा में और लग जाएगा, फिर अनुपमा भी कहीं ना कहीं इनको एक कराने में जुट जाएगी, जो कि ये होना नहीं चाहिए। तो अब देखते हैं कि कहानी कैसा मोड़ लेती है। तो धन्यवाद मैडम। वाह वाह, थैंक यू सो मच बलदेव जी। बहुत दिनों बाद और बहुत सारी जो है आपसे रिक्वेस्ट करने के बाद आपका ऑडियो आया है, तो मजेदार ऑडियो है आपका। सही कहा, ये कीथ जो एबिगेल ने भी कहा कि खड़ूस जज हैं, इनको जरूर किसी इंडियन वुमेन ने कुछ तो कहा है, इसलिए उनको इंडियन वुमेन यानी अनुपमा से चिढ़ मच जाती है कि ये क्यों आगे बढ़ रही है। बाकी भी आपका ऑडियो अच्छा है, सही में तोशु को साथ ही ले जाते तो अच्छा रहता, वैसे भी किसी काम का तो है नहीं। बहुत बढ़िया ऑडियो है, भेजते रहिए, थोड़ा सा समय हमारे लिए निकालिए, अपनी एचएस कम्युनिटी के लिए निकालिए, तो मजेदार सा सफर रहेगा। थैंक यू सो मच बलदेव जी। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। अंजू मैम, गुड आफ्टरनून टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। आज मैं अनुपमा के बारे में ही बात करना चाहती हूँ। पहले अनुपमा जैसे जिस माहौल से पड़ी बली और बाद में शादी करके वनराज जैसे इंसान के साथ उसने अपनी इतने साल गुजारे, और शाह परिवार जैसे परिवार जहाँ बा जैसी सास मिली, और उसकी बदकिस्मती से ये दोनों बच्चे इतने बिगड़े मिले उसको। और उसके बाद जब ही उसको धोखा मिला वनराज से, उसने फेस किया और उसने डाइवर्स भी दिया उसे, और काव्या से भी शादी करवा ली। और उसके बाद अनुज आया ज़िंदगी में। अनुज को सब कुछ मालूम था अनुपमा के बारे में, जिस तरह से वो फैमिली के साथ इतनी अटैच्ड है, एक एक मेंबर के साथ इतनी अटैच्ड है और इतना इमोशनल है, वो सब कुछ उसने अपने आँखों से देखा था कि वो अपनी फैमिली के बिना रह नहीं सकती। ये सब कुछ जान के भी अनुज ने अनुपमा से शादी की। ये सब कुछ जान के शादी करने के बाद अनुज ने भी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किए, ऐसे नहीं कि बहुत हेल्प किया उसे। अनुपमा की वजह से शाह फैमिली को भी उसने बहुत सारे मुसीबत से उसने हेल्प किया उन्हें, उस बात में कोई डाउट नहीं है। पर जब छोटी आई उनकी दुनिया में, उनकी ज़िंदगी में, तो अचानक से अनुज को अनुपमा के बदले छोटी प्रायोरिटी आ गई, और ये प्रायोरिटी के रंग रतने लगे। और जब ही छोटी माया से मिलके माया लेके चली गई तो अनुज उसके पीछे पीछे चला गया। वहाँ से अनुज गलत था, भले ही कोई मुझे माने या ना माने, वहाँ से अनुज गलत था। उसके पीछे पीछे, माया के पीछे पीछे चला गया, जहाँ अनुपमा उसे पुकारती रही और बेहोश होके गिर भी गई, उसको वो भी परवाह नहीं था। तो 26 साल का प्यार यही है क्या? और उसके बाद एक दूसरे से फिर से मिल गए वो, और बाद में अनुज की माँ की एंट्री हुई और घर में ये सब का ये हुआ, कलेश हुआ,
और समर का डेथ हुआ। समर का डेथ अनुज को वो गोली लगने वाली थी। समर ने अपनी जान पे खेल के अनुज को बचाया, पर उसने बचाया, उसकी कुर्बानी का कुछ वैल्यू ही नहीं रह गया, क्योंकि जिसने उसको बचाया थोड़ी दिन में या थोड़े महीने में ये दोनों अलग हो गए, अनुपमा और अनुज। और जिस दिन एक्सीडेंट का हुआ था उसके सामने शाह फैमिली ने अनुपमा को इतना बेइज्जत किया था, वो सब अनुज ने देखा था अपनी आँखों से। उसके बाद भी वो घर आने के बाद इतना सब कुछ सबके सामने वही दिन उसको क्यों बोलने का था, ये सब इतना प्यार करता है बोलने वाला, उसी दिन इतना सब कुछ किस तरह से उसने बोल दिया। उसने ना अनुपमा को बोला, अपने प्यार के भी धज्जियाँ उड़ा दी। अगर उन दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग रहता या वो खुश नहीं था अनुपमा से, अगला दिन भी वो आराम से एक दूसरे से बात करके म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग होके अलग हो सकते थे, पर उसने ये ऐसा नहीं किया। और आद्या को जब भी छोटी थी तब से उसने समझाया ही नहीं, तभी समझा सकता था वो कि तुम्हारी माँ, उस अनुपमा को तो वो जानता था ना, तो क्यों नहीं समझाया। जैसा हम जब भी छोटा पौधा रहता है तो हम लोग उसको छोटा स्टिक और वो बांध के रखते हैं कि बराबर डायरेक्शन में वो पौधा बड़ा हो। वैसे ही जब भी बच्चे छोटे होते हैं उनको समझा सकते हैं आसानी से। अगर बड़े हो जाए तो मुश्किल हो जाता है उनको समझाना। अनुज ने बल्कि खुद को उसको एहसास नहीं है उसने क्या कुछ उस दिन कह दिया था, ऊपर से उसने आद्या को भी वो समझाना ज़रूरी नहीं समझा, और एक अडॉप्टेड गर्ल के लिए अपनी 26 साल का प्यार को उसने अनदेखा कर दिया। और आज का एपिसोड के बारे में बात करना है। आज जब भी अनुपमा घर में एंटर होती है सब लोग जाने के बाद, उसे बहुत अकेलापन महसूस होता है, और वो जैसा सबको नॉर्मली, इवन दूर के रिलेटिव्स भी कोई किसी का घर में आए और वो जाने के बाद सबको अजीब लगता ही है। और अनुपमा तो इतना इमोशन है तो उसको लगना ही है। और यहाँ जहाँ तोशु और केंजल बात करते हैं, और तोशु को तो इतना भी नॉलेज नहीं है कि जैसे टूर में जैसे आए ऐसे चल दिए। अभी इतना साल से आप वहाँ अमेरिका में रह रहे हो, अचानक से कैसे जा सकते हो? सब कुछ बराबर वाइंड अप करके जा सकते हैं ना। और उसको अपनी बेटी की पढ़ाई के बारे में भी उतना चिंता नहीं है, उसको उतना सिंपल कॉमन बेसिक नॉलेज नहीं है कि मिडिल ऑफ द एकेडमिक ईयर अगर वो उसको लेके यहाँ से अमेरिका से जा रहा है तो उसका एजुकेशन का क्या होएगा। और ऊपर से उसका केस भी चल रहा है। और यहाँ मेकर्स बहुत लूपहोल्स दिखाते हैं, जैसा कुछ क्लैरिफाई करते नहीं हैं। जैसा अचानक से छोटी बॉम्बे पहुँच गई थी और बाद में एक्सीडेंट का कुछ अभी तक बराबर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, और उनका अनुज और अनुपमा का डाइवर्स, और अभी जैसा पाकी का केस चल रहा था कस्टडी का, फिर भी वो यहाँ पे आ गई विदाउट इन्फॉर्मेशन ऑफ द कोर्ट, या अगर कोर्ट में परमिशन या इन्फॉर्म किया है तो वो भी बताना चाहिए कम से कम एक लाइन पे।
तो ये सब कुछ नॉलेज, छोटा छोटा नॉलेज लोगों को बहुत काम आता है। और यहाँ तोशू जाना चाहता है, जब बल्कि उसका केस अभी ख़त्म ही नहीं हुआ है। और यहाँ केंजल ने बराबर बोला कि श्रुति जानबूझकर अनुपमा को सब में इन्वॉल्व करती है। उसको भगवान का भोग प्रसाद बनाने को भी होता नहीं है, उसके लिए भी अनुपमा ही चाहिए। सिर्फ पूजा में बैठना ही है बस अनुज के साथ। और जिस तरह से केंजल ने बोला कि शादी होगी कि नहीं देखेंगे करके, तो शायद अभी शादी पोस्टपोन हो जाएगी। जैसे प्री कैप में श्रुति को गोली लगा दिखा रहे हैं। और यहाँ जब कंपटीशन में जब भी अनुपमा को इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं, उसको समझ में नहीं आता है ये कौन से वेजिटेबल्स है और इसमें कैसे क्या बनाने का है करके, वो बहुत परेशान हो जाती है। 2 जजेस तो बहुत उसको मोटिवेट करते हैं और बाकी कंटेस्टेंट भी बहुत मोटिवेट करते हैं, पर वो एक खड़ूस जज बहुत डीमोटिवेट करता है। बाद में उसको जैसा अनुज ने ही जैसा बोला हुआ फील होता है कि रुक जाओ, और सबका चेहरा उसका सामने आता है, बापूजी का, बा का, दीपू जी का, बीजी का, सबका। उसके वजह से वो बाद में वो बहुत अच्छी तरह से बिफोर द टाइम बना लेती है। और शायद वो इस बार इस राउंड में जीत के डेंजर जोन से नेक्स्ट राउंड चली जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर अनुपमा को अब अपने सपनों के बारे में सोचना चाहिए। कब तक ये सब बेटा का सब परिवार का ही पीछे पड़ी रहेगी, तो कब अपना सपना पूरा करेगी। सब फैमिली में तो प्रॉब्लम्स रहते ही हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व करते ही रहेगी, तो कब ये अपना सपना पूरा करेगी। मैं तो चाहती हूँ वो अपना सपना पूरा करे, क्योंकि इस आद्या के वजह से उसने पहले भी अपना सपना छोड़ दिया था। अभी अमेरिका में रह के भी वो अगर सपना पूरा नहीं कर रही हो, दैट विल बी द रॉन्ग मैसेज टू द सोसाइटी। हर बार प्रायोरिटी फैमिली को देते रहेंगे तो ये फैमिली तो उसको कुछ नहीं मानता है। वो खुद अपने आप को प्यार नहीं करेगी, इम्पोर्टेंस नहीं देगी, तो कौन देगा। आई वॉन्ट अनुपमा टू सी ए सक्सेसफुल वुमन। थैंक यू अंजू मैम, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच राधिका जी। और सही आपने जर्नी को आपने अपने शब्दों में बुना है, अनुपमा की जर्नी को। सही बात है, इतना सफर किया है अनुपमा ने, 26 साल वनराज की बातें सुनी है, उसके ताने सुने हैं, आज भी सुनती आ रही है। जिस परिवार के साथ इतना जुड़ी हुई थी, उसको एकदम से कैसे छोड़ दे अनुज के कहने पे, जबकि अनुज को सब बातें पता थी। तो बहुत ही सही आपने रिव्यू किया है अनुपमा की जर्नी का और आज के एपिसोड का भी। थैंक यू सो मच राधिका जी। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू मैम, और मेरी सभी सखियों को भी नमस्ते। मैं रेखा सक्सेना बात कर रही हूँ। कल का ऑडियो आपको अच्छा लगा मैम, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज का एपिसोड ठीक था। अनुपमा, अकेली अनुपमा जो भरे पूरे परिवार में रहती थी, परिवार जिसकी कमजोरी थी, अकेले घर में अपने विचारों के साथ लड़ रही है। अब कुछ विचार जैसे रेस्टोरेंट का बंद होना, सुपरस्टार शेफ में डेंजर जोन में उसका आना, आध्या की नफरत, सब उसके सामने चल रहे थे। आध्या कह रही थी कि श्रुति ने उन दोनों को समझा और संभाला। क्या संभाला? एक गुस्से से भरी लड़की को नफरत की आग में झोंक दिया। उसकी बदतमीजी इतनी बढ़ गई कि वो 12 साल की लड़की 53-54 साल के पिता से बदतमीजी कर रही है।
उसको समझा रही है हाउ टू लिव। अनुपमा को मनहूस कह रही है, जिसकी वजह से कपाड़िया खानदान में आई है वो। जब माया छोड़कर चली गई थी तो उस ट्रॉमा से किसने निकाला? अनुपमा ने। उसकी स्टडी, उसका खाना पीना, सबका ध्यान अनुपमा ने रखा। एक्सीडेंट से बचाया, और जो एक्सीडेंट आद्या की वजह से हुआ था। गुंडों से अमेरिका में बचाया। आद्या आज जिंदा नहीं होती, लेकिन उसको क्या, उसको तो सिर्फ श्रुति के एहसान याद है, क्योंकि श्रुति आद्या की हर सही गलत बात मानती है। लेकिन फिर अनुपमा ने अपने आप को संभाला और कंपटीशन के लिए तैयार हुई। उधर तोशु, जिसके पास दिमाग नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। पता नहीं किंजल क्यों उस आदमी को झेल रही है। तोशु कह रहा है कि मम्मी बोझ है। एक दिन तोशु उसी बोझ के आगे सिर झुकाएगा। लेकिन हमारा अनुज क्या कहें, शादी में 2 दिन शेष हैं, लेकिन उलझा है अनुपमा में। श्रुति ने अनुज से पूरे मन से पूजा में बैठने को कहा, लेकिन अनुज ने कोई जवाब नहीं दिया। परी और किंजल घर आते हैं। किंजल श्रुति को समझ रही है और अनुपमा से कह रही है कि श्रुति गलत कर रही है, वो आपसे इनसिक्योर हो रही है। अनुपमा कहती है कि अब उन दोनों की शादी हो रही है, सब ठीक हो जाएगा। तब किंजल ने कहा कि अभी शादी हुई नहीं है, ना हुई तो यू नेवर नो। सच कहा किंजल ने, भगवान की माया के आगे किसी की नहीं चलती। मुझे माया का किस्सा याद आ रहा है। अनुज माया के पास गया था और वहाँ ऐसा फंस गया था कि उसके लौटने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन कान्हा जी ने बांसुरी बजाई और सब पलट कर रख दिया। अनुज का पूजा में बिल्कुल ध्यान नहीं लग रहा था। सारा ध्यान अनुपमा और सुपरस्टार शेफ में लगा हुआ था। उधर अनुपमा सुपरस्टार शेफ में लड़ती नजर आई। नए नए इंग्रेडिएंट्स, खड़ूस जज की कड़वी बातें, सुपरस्टार की टेंशन, सब अनुपमा को कमज़ोर बना रही थी। राउंड शुरू हुआ और जजों के प्रेशर बढ़ते गए। उस समय अनुपमा बहुत हेल्पलेस महसूस कर रही थी। 15 मिनट में उसको एक अच्छी डिश बनानी थी और जिसकी इंग्रेडिएंट्स की पहचान उसे नहीं हो पा रही थी। प्रेशर में अनुपमा और बनराज और तोशु की कड़वी बातें उसे हतोत्साहित कर रही थी। पूजा में श्रुति अनुपमा को अनुज की ज़िंदगी से जाने की प्रार्थना कर रही थी कि अनुपमा हमारी ज़िंदगी से चली जाए, और अनुज अनुपमा की चिंता कर रहा था। सुपरस्टार शेफ से जब अनुपमा जाने लगती है, तब अनुज के दिल की आवाज़ रुक जाओ अनुपमा तक पहुंचती है। ये है दिल से दिल की आवाज़। दोनों अलग हैं, फिर भी दिल एक है। एक के दिल की आवाज़ दूसरे दिल तक पहुंच गई और अनुपमा रुक गई। फिर वो यशदीप, बीजी, बाबूजी और बाकी आवाज़ें उसको उत्साहित कर रही थीं। अनुज पूजा में तो बैठा था, लेकिन अनुपमा को हार ना मानने के लिए कह रहा था। अनुपमा वापस अपने काउंटर पर आती है। फिर अनुपमा वही स्ट्रॉन्ग अनुपमा बन गई। उसने सूंघकर, चखकर, महसूस करके सारे इंग्रेडिएंट्स को समझा और अपने आप से कहा कि अभी तुझे आगे बढ़ना है। इन जजों, कुछ 2 जजों का सपोर्ट भी देखा गया। जजेस को पता था कि एक औरत को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अपनी काबिलियत से अनुपमा ने एक खूबसूरत डिश बना ही डाली, और वो भी कम टाइम में। 2 जज बहुत खुश हुए, लेकिन तीसरे जज का तो मुंह देखने लायक था। प्री कैप में श्रुति को गोली लगती है और आद्या अनुपमा को धमकी देती है। तब अनुपमा कहती है कि अपनी बेटी की मुस्कुराहट मैं वापस लाऊंगी और श्रुति को आद्या की ज़िंदगी में भी वापस लाऊंगी। यही मेरा अब मकसद है। तो इस सुपरस्टार शेफ की जर्नी का क्या होगा? पता नहीं कब, किसके लिए अनुपमा अपने सपने तोड़ती रहेगी। पहले अमेरिका जाने का सपना छोटी की वजह से पूरा नहीं हुआ, और अब
आद्या की खुशी के लिए सुपरस्टार शेफ बनने का सपना भी टूट ना जाए। माँ बनने की बहुत बड़ी सज़ा मिल रही है अनुपमा को। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम। थैंक यू सो मच रेखा जी इतने अच्छे रिव्यू के लिए। और ये बात हमने डिस्कस भी किया और आज आपने भी कही है, बहुत सही बात है कि अगर अच्छे से श्रुति ने आद्या को संभाला होता तो आद्या आज ऐसी ना होती। उसका ट्रॉमा कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ता ही गया है और अब तो आगे और बढ़ने वाला है, जैसे आगे के प्रोमो हम देख रहे हैं। और बाकी आपके रिव्यू में भी बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। थैंक यू सो मच रेखा जी, ऐसे ही बने रहिए। तो सुनते हैं अगला रिव्यू। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और रानी महेंद्र जी इतने लवली कमेंट के लिए और मेरे पापा की प्रार्थना करने के लिए थैंक यू सो मच। और मेरी सभी बहनों को मेरे पापा के लिए प्रार्थना करने के लिए थैंक यू सो मच। दिल से थैंक यू अंजू जी, आपको भी दिल से थैंक यू। आज का एपिसोड देखा, एक बात तो है कि अनुपमा ने अनुज की आवाज़ सुनकर ही रुक गई। वो दिल से दिल की आवाज़ पहले सुनी और बाद में बाकी सबके चेहरे दिखे और आवाज़ें सुनी। और मैंने अभी प्रोमो भी देखा है जिसमें 2 टेररिस्ट परी और आद्या दोनों को लेके बाहर निकलते हैं और अनुपमा दौड़ती है और पीछे श्रुति भी दौड़ती है आद्या करते हुए, लेकिन ऊपर जो टेररिस्ट होता है वो गोली चला देता है श्रुति पे। तो इसमें अनुपमा की कोई भी गलती नहीं है और अनुज भी श्रुति को आवाज़ देता है और उसके पास भागता है। लेकिन इस लड़की को सिर्फ और सिर्फ अनुपमा पर ही ब्लेम लगाना है, जबकि उसने कुछ नहीं किया है। बिना धागे की सुई सी बन गई है जिंदगी, सिलती कुछ नहीं बस चुपती चली जा रही है जिंदगी। ये हाल है आज अनुज और अनुपमा का। जैसे अनुपमा ने शर्तों पर ही इस नालायक लड़के से प्यार किया था, क्या संभाला है श्रुति ने, दिख रहा है। ये तोशु नहीं सुधरेगा। किंजल तुमने बिल्कुल सही कहा है कि हम भी बोझ ही है परिवार के लिए। मम्मी की हालत हमसे बहुत अच्छी है और तोशु तू निकम्मा ही रहेगा, तुम निकम्मे ही रहोगे। काम करना है नहीं और सब पे बोझ बनना है। अभी किंजल पर हो और इंडिया में बाप पर बोझ बनते हो। जब मन अनुज के पास होगा तभी तो वो पूरे मन से आगे बढ़ेगा ना। इसे प्रसाद तक बनाना नहीं आता है, फिर ये आद्या को इसमें कौन सी खूबी दिखी है। आद्या का कहना ये एफर्ट्स तुम्हें कभी नहीं दिखाई देगा कि आप पूरा एफर्ट्स डाल रहे हो शुरू, लेकिन पापा की तरफ से कोई भी एफर्ट्स नहीं दिखाई दे रहे। तो ये एफर्ट्स तुम्हें कभी नहीं दिखाई देंगे। किसी के मन को मारकर काम करवाओगे तो वो कभी भी सफल नहीं होता। आद्या तुम और श्रुति कितना भी कुछ कर लो फिर भी अनुज कभी भी पूरे मन से अनुज शुरू का नहीं होगा। लो अनु ने प्रसाद बनाना शुरू कर दिया। अनुपमा तुम और अनुज रोज रोज मर रहे हो, तुम्हारे लिए तड़प रहा है। उसका सोचो अनुपमा, अनुज तुम्हारे लिए तड़प रहा है। देखा जाए तो अनुज ने खुद ये तड़प चूज की है। किंजल ने एक बात सही कही है, श्रुति ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है। किंजल ने गलत क्या बोला है कि अनुज जी उसके है तो वो है ही। श्रुति को उसे ऐसा नहीं लगता है। श्रुति को ऐसा नहीं लगता है मम्मी, वो आपको लेकर इनसिक्योर फील कर रही है। सही कहा किंजल ने, शादी हुई तो ना तुम्हारे मुंह में घी शक्कर किंजू बेबी। हाँ अनुज वो अपनी अनु है, वो आपकी अनु है। प्रसाद बनाकर भेज दिया। चलो आद्या स्कूल जा रही है। ये 2 बार गिरी। कान्हा जी रोक रहे हैं। पता नहीं इस जज को क्या खुन्नस है अनुपमा से, क्या बकवास है। पहले माया के साथ पूजा करवाई, अब श्रुति के साथ। अनुपमा को सबकी बातें याद आ रही है। अनुपमा मेहनत तुम्हें करनी है और जितना भी है। लो अनुज को मैसेज आ गया कि 2 बजे कुकिंग कंपटीशन शुरू होने वाला है। अनुज को पूजा देखकर उनकी भूमि पूजन वाला सीन याद आ गया, जब वो उनका
रेस्टोरेंट खुलने वाला था, उसके भूमि पूजन के टाइम पे वो दोनों ने हाथ के छापे लगाए थे और पूजा हुई थी। वही पूजा वाली बात याद आ गई। अब जो भी पूजा या कुछ भी रिचुअल होगा, अनुज को अनु की याद आएगी ही। अनुज और अनु मन से जुड़े हैं तो कैसे भूल पाएंगे एक दूसरे को। ये दिल का और आत्मा का रिश्ता है जो सिर्फ वही समझ सकते हैं जो जी रहे हैं और जीते हैं। हाँ, आपने अनु के बारे में सोच रहा है, अनुज अपने अनु के बारे में ही सोच रहा है। तन से भले ही अनु श्रुति के साथ हो, लेकिन मन से अनु के पास है, उसी के बारे में सोच रहा है। यहाँ ये जो दो जज है बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये खड़ूस जज क्यों ऐसे है तो पता नहीं। उसे अनु से क्या प्रॉब्लम है। वो सिर्फ अनुपमा से कभी भी अच्छे से बात नहीं करते। अनु सोचने में ज़्यादा टाइम लेती है। सोचो मत, काम पे लग जाओ। आप तैयार हैं? हाँ, मैं तैयार हूँ। दोनों जज ने अनुपमा का हौसला बढ़ाया। कैसी औरत है श्रुति, चिपक के बैठ गई है जबरदस्ती पूजा में। अनुज का पूरा ध्यान अनु पर ही है। वो पूजा में श्रुति के साथ बैठा, लेकिन उसका ध्यान कहाँ है? अनुपमा की तरफ। तो वो पूजा कैसे सफल होगी? वो क्या करेगी, कैसे करेगी, वही सब उसके दिमाग में चल रहा है। अनु, तुम्हें जीतना है। और उसे कैसे एहसास हो गया और उसने रुको कह दिया और उसने सुन भी लिया अनु ने, और उसके पैर भी रुक गए। ये दिल से दिल का कनेक्शन है। दोनों जज पूरे कंटेस्टेंट मिलकर अनु का हौसला बढ़ा रहे और अनु को दीपू जी, बीजी, बापू जी सब दिखाई दे रहे और हौसला बढ़ा रहे। अब अनु ने कमर कस ली है, सारी चीज़ें चक्कर पता लगा रही है कि क्या है। टाइम से पहले डिश बनाकर रेडी है। अब जजेस को पसंद आएगा या नहीं ये सोचकर परेशान है। तोसु वनराज की बातें याद आ रही है। श्रुति का कहना अनुपमा एके के मन से, दिल से, ख्यालों से और हमारी ज़िंदगी से चली जाए, ये चाहती हूँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा श्रुति। और यहाँ अनुज अनु के लिए प्रार्थना कर रहा है कि अनु डेंजर जोन में है, वो कैसे करेगी, कहीं उसका सपना अधूरा ना रह जाए। उसका ख्याल आया तो बोल दिया, स्टॉप अनु, गिव अप मत करना। दोनों जज भी हौसला दे रहे हैं। सैली जी, एक जज ने कहा कि डोंट अंडर एस्टिमेट वुमन पावर। सैली जी, कमोन अनुपमा, कमोन। वो जज भी कह रहे हैं कमोन अनुपमा जी। दोनों जज बोल रहे हैं टाइम से पहले डिश तैयार है। 10 मिनट से पहले ही डिश बन गई। नहीं जीतेगी अनुपमा सुपरस्टार शेफ का ताज। आद्या के लिए फिर लगाएगी अपने सपनों को आग। अनुज ने कभी छोटी को समझाया ही नहीं है कि हादसा हुआ, लेकिन किसकी वजह से हुआ ये तक नहीं पूछा। तो असली कारण अभी तक अनुज को पता ही नहीं है, तो क्या समझाएगा। अनुपमा हर चीज़ का इल्ज़ाम अपने ऊपर लेती है। आज भी अनुज ने कहा कि अनु कंपटीशन जीतना चाहिए, उसका सपना नहीं टूटना चाहिए। वो उसे गिव अप नहीं करने देगा। कंपटीशन में जाने के लिए ज़रूर कहेगा अनुज, क्योंकि उसके साथ स्पाइस एंड चटनी और सारे स्टाफ का भविष्य जुड़ा हुआ है। तो अनुपमा गिव अप कैसे कर सकती है? और वो खुद भी जानती है कि मेरा भविष्य, मेरे इस सपने से सबका भविष्य जुड़ा हुआ है, और वो स्पाइस एंड चटनी को बचाएगी ज़रूर, चाहे कितनी भी मुसीबत आए। लेकिन अनुपमा पीछे नहीं हटती, और इस बार उसकी गलती भी नहीं है। गोली ऊपर से चली, अनुपमा भागी तो पीछे श्रुति भी भागी आद्या के लिए, और उसे गोली लग गई। तो गलती किसकी है? जब देखो तब ये अनुपमा को ब्लेम करती रहती है। क्यों भाई? और पाखी भी नहीं गई इंडिया। अरे वो तो जाने वाली थी, उसको तो लेके जा रहा था ना, फिर उसको क्यों छोड़ के गया? और सच में ये तोसु कभी नहीं सुधरेगा। खुद तो काम धंधा करना है नहीं, और उसे पहले ही जाना है इंडिया। जब कहा किंजल ने कि हम नहीं जाएंगे, तब तो जाने के लिए मरे जा रहे थे। अब वापस जाना है तुम्हें, तो यहाँ का सब क्लियर कौन करेगा? राजन साई जी ने इस सीरियल में सब कुछ अधूरा छोड़ा है। छोटी मुंबई कैसे पहुंची वो नहीं पता। बापूजी की भूलने की बीमारी थी, वो ठीक कैसे हुई वो भी नहीं पता। मालती देवी भी भूल जाती थी, वो भी उसे कैसे ठीक हुई वो भी नहीं दिखाया।
और कंपटीशन अधूरा नहीं रहना चाहिए। नहीं तो फिर मतलब ही क्या है इतना सब कुछ करने का। हर बार अनुपमा आगे बढ़ना चाहती है तो उसे 2 कदम पीछे खींच लिया जाता है। अब वो श्रुति का सेवा करेगी और उसकी बेटी को श्रुति दिलाएगी। ये कैसे दोनों माँ बाप है। आद्या जितनी बिगड़ी है वो सिर्फ और सिर्फ अनुज और अनुपमा की वजह से है। बच्चे को समझाना चाहिए हालातों से किस तरीके से लड़ा जाता है, और होगी कोई प्रॉब्लम अगर आपको नहीं बचाया मम्मी ने और लास्ट में बचाया, आपको ही पहले बचाती तो सब लोग मर जाते। इतनी सी बात भी अनुज नहीं समझा पाया आज तक आद्या को। और आयुष का केस का भी क्या हुआ वो भी नहीं पता। तोशु के केस वो भी आधे में रुक गया। सब कुछ आधे में छोड़ देते। पूरी स्टोरी तो कंप्लीट कीजिए कम से कम, फास्टली ही सही, लेकिन सब कुछ तो दिखाइए। अब पता नहीं ये लड़की ब्लेम कर रही है, अब भी अनुज कुछ बोलेगा तो अच्छा रहेगा। बोल रही है कि अगर श्रु को कुछ भी हुआ, अनुपमा का भगवान भी सिर्फ अनुपमा का इम्तिहान लेने के लिए उसके साथ होते हैं, और दर्द का कोई ना कोई बहाना अनुपमा की लाइफ में खड़ा कर ही देता है। नहीं तो वनराज के साथ इतने साल टॉर्चर और दर्द और धोखे के बाद भी अनुपमा ने जीना सीख लिया था। फिर क्यों अनुज को उसकी लाइफ में लाना था, और अगर लाना था तो परमानेंट लाना था। ये थोड़ा सा प्यार और फिर उससे 1000 गुना ज़्यादा दर्द। कभी माया, कभी छोटी, कभी श्रुति, ये सब क्या नाटक है। भगवान का, और जब भगवान, हाँ नाटक है भगवान का। और जब अनुज अनुपमा 5 साल एक दूसरे से दूर रहे, अनुज ने श्रुति से एंगेजमेंट कर लिया, तो फिर अनुपमा को अनुज के सामने क्यों लाया। अनुपमा को अपनी लाइफ में और अनुज को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने देना चाहिए था, बट नहीं, अनुज को अनुपमा के सामने और अनुपमा को अनुज के सामने तो लाए ही लाए, लेकिन साथ में पूरे सात परिवार को भी अनुपमा के सामने ले आए। आखिर भगवान भी क्या चाहते हैं अनुपमा से तो पता नहीं। और अब ये लड़की क्या कह रही है कि अगर श्रु को कुछ भी हुआ तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, और मैं खुद अपने आप को कच कर लूंगी तो उसकी जिम्मेदार आप होगी। वाह बेटा, अच्छी धमकी दे रही हो, लेकिन अनुज का मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा है। अब देखते हैं पूरे एपिसोड में अनुज कुछ बोलता भी है या नहीं। हर बार चुप ही रहेगा और अनुपमा की इंसल्ट होने देगा। वो भी तो वहां था ना। क्या किया है अनुपमा ने? कुछ भी नहीं किया। अब देखते हैं आगे क्या दिखाते हैं सीरियल में। लेकिन आज का एपिसोड अच्छा लगा, उसकी डिश भी अच्छी थी, और सबसे बड़ी बात, अनुज के मन में आज भी अनुपमा ही है और अनुपमा के मन में भी अनुज है। इसीलिए दिल से दिल की आवाज भी सुनी और वो रुक भी गई। और मन में कोई और हो तो पूजा कभी सफल नहीं होती है। श्रुति, तुम कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन अनुज के दिल से अनुपमा को कभी नहीं निकाल पाओगी। अगर अब श्रुति की देखभाल करेगी अनुपमा और श्रुति पीछे हट जाए तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आगे तो भगवान ही मालिक है। और मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आपको भी प्यार भरा नमस्ते, और मुझे इतनी हिम्मत देने के लिए थैंक यू सो मच अंजू जी। थैंक यू इतनी अच्छी बहनें भी देने के लिए। थैंक यू, बाय बाय। और सुजीत जी और सुजाता जी, आप दोनों को भी थैंक यू सो मच मुझे इतना हौसला और हिम्मत देने के लिए। थैंक यू सो मच ख्याति जी आपके रिव्यू के लिए। और बढ़िया रिव्यू होता है हमेशा की तरह, आपका आज भी है। बस इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, जो आपने कहा कि अनुज को मैसेज आया। अनुज को मैसेज नहीं, बल्कि अनुज ने बकायदा रिमाइंडर लगाया था अनुपमा के मास्टर शेफ शो का, यानी कि सुपर स्टार जो मास्टर शेफ शो जो चल रहा है उसके लिए, उसके जो भी दिन में जो भी उसके कंपटीशन है, जो भी उसके राउंड्स है, उनका डेट के साथ रिमाइंडर था। इसीलिए वो रिमाइंडर ब्लिंक हुआ, पॉप अप हुआ कि आज तो ये राउंड है। तो इसीलिए अनुज ने खुद वो रिमाइंडर लगाया हुआ था। तो आप समझ सकती हैं, जब कोई इंसान खुद किसी बात का रिमाइंडर लगाता है तो वो उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये था, और बाकी आपने बहुत सही कहा है और बहुत बढ़िया बढ़िया आपने बातें कही हैं। तो ऐसे ही आप भी हमारे इस एचएस कम्युनिटी के बहुत ही अच्छी मेंबर हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया रिव्यूज देती है। तो मजेदार है ये सफर, तो ऐसे ही इसको जारी रखते हैं, है ना।
तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको। और आप सबको जिन्होंने ऑडियो नहीं भेजा है अभी तक एचएस कम्युनिटी के लोगों ने, वो जरूर भेजिए। एचएस कम्युनिटी के बारे में मैं बता दूं, एचएस कम्युनिटी वो कम्युनिटी है जो हंग्री स्पिरिट्स यानी एचएस के साथ जुड़ी हुई है थ्रू पेड मेंबरशिप। तो वो पेड मेंबरशिप के जो भी लेवल्स हैं आपको दिखेंगे हमारे चैनल पे, उस पे देखिए और फिर आप भी बनिए एचएस कम्युनिटी के मेंबर। और ऑडियो और वीडियो भेजने के लिए नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के एचएस कम्युनिटी की आवाज वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.